6 ستمبر ہمارے ان شہداء اور غازیوں کا دن ہے جن کو ہم بہت احترام اور عقیدت سے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جو شہداء ہیں، غازی ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو سارا ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو غازی ہیں، میرے اپنے بزرگوں جنرل صاحب غازی تھے، اور اس طرح کئی نشان حیدر، میجر طفیل محمد، راجہ عزیز بھٹی، راشد مناز، میجر شبیر شریف، میجر محمد اکرم، یہ کافی سارے نام ہیں، کرنل شیر خان، 11 نام ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا۔ اب اسی طرح ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، کل بھی کریں گے، سارا مہینہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کو ہم سلوٹ اور سلام پیش کرتے رہیں، کیونکہ یہ محب وطن سپاہی تھے جنہوں نے اپنے وطن کو بچانے کی خاطر شہید ہوئے، اور کچھ غازی ہوئے۔ اب اس کے علاوہ میں جو خاص بات اور ایک بتانا چاہتا ہوں، ان کا تو سارا دن تذکرہ سارے چینلوں پہ میں دیکھتا بھی رہا، سنتا بھی رہا، لکھتے بھی رہے، اور ہم نے بھی کلر پہ چھاپا، لوگ بھی چھاپتے رہے اور چھپتا رہے گا، لیکن کچھ ایسے نام ہیں جن کو میں عرض کروں گا کہ وہ شہید وطن ان کو میں کہتا ہوں، اور ان کا تذکرہ آج تک نہیں ہوا۔ فوجی بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فوج میں تو ضرور تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، ریکارڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکرینوں پہ، اخباروں میں نہیں آتا۔ تو میں اپنے میڈیا سے بھی اپیل کروں گا، اور خود بھی ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو شہید وطن کہلاتے ہیں، وہ جہاں ہمارے نشانہ حیدر، ستارہ جرأت، ستارہ امتیاز، غازی اور شہید ہیں، وہاں یہ شہید وطن بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہادر اور جرت مند سپوت کا نام ایرک جی ہال تھا۔ ایئر وائس مارشل ایرک جی ہال جو وائس چیف آف ایئر سٹاف رہے۔ 65 کی جنگ میں ایک موقع وہ بھی آیا جب پاکستان کے پاس جنگی طیارے کم پڑ گئے، حملہ کرنا تھا مگر جہاز کم تھے۔ ایرک نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم C-130 کو بمبار طیارے کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن حملہ ضرور کریں گے۔ منصوبہ ناقابل عمل تھا کیونکہ C-130 لڑاکا طیارہ نہیں تھا۔ ایئر مارشل ایرک جی ہال نے منصوبے کو اس شان سے قابل عمل بنایا کہ خود C-130 اڑایا اور جا کر بم پھینکائے۔ انہیں ہلال جرت، ستارہ جرت اور ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ پاکستان اپنے بہادر بیٹے کو بھولا نہیں، سلام پیش کرتا ہے۔ سلام تم پر۔ پیٹر کرسٹی پاکستان کے قابل فخر سپوت تھے جو پوری جرت سے لڑے اور سارے بانگ پن سے وطن پر قربان ہو گئے۔ اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی 65 کی جنگ میں شریک رہے۔ جب 71 کی جنگ شروع ہوئی تو پیٹر کرسٹی ڈیپوٹیشن پر PIA میں کام کر رہے تھے، چھوڑ کر واپس آ گئے۔ کراچی پر دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اسے روکنا ضروری تھا۔ بیس کمانڈر ایئر کموڈور نذیر لطیف بھی مسیحی تھے۔ انہیں 65 کی جنگ میں تمغہ جرت عطا کیا گیا اور 71 کی جنگ میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا جائے، لیکن یہ مارو اور مر جاؤ مشن ہوگا اور واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کون جائے گا؟ پیٹر کرسٹی نے کہا اس دن کا تو انتظار تھا، میں جاؤں گا۔ اسی مشن کے دوران پیٹر کرسٹی وطن پر قربان ہو گئے۔ سلام تم پر۔ ایئر وائس مارشل مائیکل جان اوبرائن، انہیں اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے لیے 3 جنگیں لڑیں۔ 65 کی جنگ میں انہیں تمغہ جرت دیا گیا۔ سرگودا ایئر بیس کے کمانڈنٹ رہے۔ افواج پاکستان کی اس ملٹری ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے پہلی نیوکلیئر سائٹ کو سپروائز کیا۔ نشان امتیاز اور ستارہ بصالت سے بھی نوازے گئے۔ سلام تم پر۔
विंग कमांडर मार्वन लेस्ले मिडल कोर्ट 65 की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर कराची में तैनात थे। दुश्मन ने कराची पर हमला किया तो उन्होंने भारत के 2 जहाज मार गिराए। इन्हें शहरियों की जानिब से कराची के मुहाफिज का खिताब दिया गया। इन्हें 2 मर्तबा सितारा जुर्रत अता किया गया। जामनगर के एयरपोर्ट पर फिर हमला करना था और जिसने जाना था यह सोचकर जाना था कि मिशन से वापसी का कोई इम्कान नहीं। तारीख ने अपने आप को दोहराया। इस दफा कमांडर मार्वन लेस्ले मिडल कोर्ट ने मादरे वतन के लिए लब्बैक कहा और खुद को वॉलंटियर किया। हालांकि वो एक ही दिन पहले उर्दन से लौटे थे। कामयाब हमले के बाद वापसी पर भारत के मक तैयारों ने इन पर हमला कर दिया। इन पर मिसाइल फायर हुए। एक मिसाइल जहाज को आ लगा। पाकिस्तान का एक और बेटा पाकिस्तान पर कुर्बान हो गया। उन्होंने इसराइल के खिलाफ अरबों की जंग में भी हिस्सा लिया और उर्दन के शाह हुसैन इनके बहुत मोहतरफ थे। शाह हुसैन ने बाकायदा दरखास्त की थी कि कमांडर मिडल कोर्ट के जस्ते खाकी को तो आप पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन करेंगे, लेकिन हमारी दरखास्त है कमांडर के सर के नीचे उर्दन का कौमी परचम भी रख दीजिए। ये एक अजीम कमांडर को हमारा खिराजे अकीदत होगा। लेकिन शाह हुसैन की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी की तरह कमांडर मार्वन लेस्ले का जस्ते खाकी भी ना मिल सका। सलाम तुम पर। पाकिस्तान से प्यार करने वाले बहादुरों का जिक्र चले तो एक नाम विलादे सालो जोसेफ तोरोविच का है। कयाम पाकिस्तान के 1 साल बाद 45 के करीब पोलैंड के अफसरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरबियत के लिए मंगवाए गए। इनमें एक विंग कमांडर विलादे सालो जोसेफ तोरोविच यहीं रुक गए। इन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया कि अब पाकिस्तान ही मेरा वतन है। वो पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तान के शहरी बन गए। इनकी गरा कदर खिदमत के लिए इन्हें सितारा पाकिस्तान, तमगा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायदे आजम, सितारा इम्तियाज, अब्दुल सलाम अवार्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस फिजिक्स में ITCP अवार्ड अता किया गया। हम पाकिस्तानी विंग कमांडर की मोहब्बतों को भूले नहीं। हम सलाम पेश करते हैं। सलाम तुम पर। 6 सितंबर 1965 एक ऐसा दिन कि जब दुश्मन ने ये साजिश की, ये प्लान किया कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान में जाके घुस बैठेंगे और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा के कल सुबह का नाश्ता हम लाहौर जिमखाना में करेंगे। लेकिन दुश्मन को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की जो अफवाज थी, पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी, एयरफोर्स और नेवल फोर्सेस, उन्होंने पूरी तरह से डिफेंस किया और उस हमले का जवाब इस तरह दिया कि दुश्मन को शिकस्त उठाना पड़ी। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियोज में इस वक्त 6 सितंबर 1965 की जंग के हीरोज और लेजेंड्स मौजूद हैं, जिन्होंने इस जंग को ना सिर्फ आंखों से देखा बल्कि अपनी ज़हनियत और अपने हाथों की ताकत से इस जंग को जीता और इस जंग में पार्टिसिपेट किया और दुश्मन को बताया कि पाकिस्तान में ऐसे सपूत अभी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मेजर जनरल हिदायतुल्लाह खान नियाजी, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज। इनका ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से था। 10 साल तक आर्मी एविएशन में भी सर्विस की। FWO, NLC और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कराची का आगाज भी इन्होंने किया और इसमें सर्विस भी की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ये रहे, वहाँ पे सर्विसेज अपनी दी। लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर M1 मोटरवे का आगाज किया। जनरल हिदायतुल्लाह खान नियाजी ने 1965 की जंग में सियालकोट में बतौर कप्तान हिस्सा लिया और इसी जंग में हिस्सा लेने पर इनकी बहादुरी और शुजात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा जुर्रत और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। सर, आपको अपने स्टूडियोज में वेलकम कहते हैं। हमारे अगले मेहमान हैं स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर, सितारा जुर्रत। ये 1965 की जंग में इन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा जुर्रत से नवाजा। 6 सितंबर 1965 को जब हिंदुस्तानी अफवाज वाघा बॉर्डर से लाहौर की जानिब पेशकदमी कर रहे थे, 19 स्क्वाड्रन पेशावर से
सिख सैबर्स ने बाटापुर लाहौर के करीब उनको तबाह करके लाहौर की फतह के ख्वाब को चिकनाचूर जब कर रहा था भारतीय अफवाज स्क्वाड्रन लीडर गनी उसी फॉर्मेशन का हिस्सा थे जिन्होंने इस हमले का हवाई जवाब भी दिया था। उसी दिन 8 जहाज़ों ने हिंदुस्तान पर हमला करके पठानकोट के हवाई अड्डे पे सब जहाज़ों को तबाह किया था। गनी अकबर 19 स्क्वाड्रन लीडर के उस फॉर्मेशन का भी हिस्सा थे। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर मौजूद हैं, जिन्होंने जंग के तमाम अय्याम जो थे वो चविंडा में ही हिंदुस्तानी टैंकों के अलावा कई आर्मर्ड व्हीकल्स और तोपों को तबाह किया था। उसी जंग में उनको भी सितारे जुर्रत से नवाजा गया। सर, आपको अपने स्टूडियोज में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, हमारे जो अगले मेहमान हैं कमोडोर वसीम अहमद, सितारा इम्तियाज सिविल और सितारा इम्तियाज मिलिट्री। कमोडोर वसीम अहमद जो हैं, इन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी में हिस्सा लिया और उसी जंग में गाजी ने भारतीय फ्रेगेट ब्रह्मपुत्रा पर हमला किया और इसे शदीद नुकसान पहुंचाया। 1971 की जंग में भी कमोडोर वसीम पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर में टॉर्पेडो ऑफिसर थे और इसी जंग में हंगोर ने भारतीय फ्रेगेट खुगरी को गर्क किया था। बाद में कमोडोर वसीम अहमद ने इसी सबमरीन हंगोर और सबमरीन हुर्मत की कमान भी अदा की। कमोडोर वसीम अहमद को पाकिस्तान नेवल अकेडमी की कमान का एजाज़ भी हासिल रहा है। एक और मुनफरिद एजाज़ जो कमोडोर वसीम अहमद के हिस्से में आया वो अंटार्कटिका जाने वाली पहली पाकिस्तानी साइंटिफिक मुहिम 1990 और 1991 की क़यादत है। इस कारनामा के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको शोबाए साइंस में गरां कदर खिदमात अंजाम देने पर सितारा इम्तियाज सिविल अता किया। कमोडोर वसीम तीनों मुसल्लह फौज में ये एजाज़ हासिल करने वाले वाहिद ऑफिसर है। सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप तीनों लेजेंड इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज को मुस्तकबिल में रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपसे शुरू करेंगे। जनरल हिदायतुल्लाह खान नियाज़ी, जब चविंडा में ये वॉर लड़ी जा रही थी 1965, तो वो क्या दिन था जब हिंदुस्तानी अफवाज ने हमला किया था? उन्होंने हमला स्टार्ट तो लाहौर से किया था और कसूर से, लेकिन चविंडा में हम 6 सितंबर को पहुंचे थे। 7 को हमने सारा एरिया देखा जंग का, जहाँ जंग होनी है, और 8 की सुबह को डिव हेडक्वार्टर ने मुझे बुला के कहा कि दुश्मन ने हमला किया है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन किधर है और कितनी फ्रंटेज है उनकी, वो आप देख के बताएं। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ करके गया। जी जी। अब एरिया जो कि हम पहले देख चुके थे 7 को भी। आपको इतला थी पहले से हमले की? नहीं, कोई इतला नहीं। अच्छा, पहले उन्होंने जसर पर हमला किया था, थिंकिंग कि हमारी तमाम फौजें जसर में जाएंगी, जसर ब्रिज पर। जी जी। तो चविंडा और जफरवाल और फ्लोरा एरिया और सियालकोट सेक्टर ये बिल्कुल खाली हो चुका होगा। जी जी। और असल अटैक उन्होंने 8 तारीख को इस दर से शुरू करना था। ये उनकी ये स्ट्रेटजी थी। इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। हमारी काफ़ी फोर्सेस जसर ब्रिज की तरफ चली भी गई, लेकिन बाद में जब पता चला कि जी उनकी असल अटैक तो इधर आ रहा है, जी जी, तो वो सारी फौजें इधर आ गई। जी जी। मैं जब चरवा और मिराज के एरिया में गया, अब उस एरिया में एक दिन पहले हम उठते रहे थे, कोई डर नहीं था, हम तो सिर्फ देखना चाहते थे कि दुश्मन के टैंक किधर है। जी जी। तो वहाँ पर जाके हमने देखा कि टैंक जो थे वो घरों में, मिट्टी के घर होते थे आम गाँव के, उसके अंदर वो रिवर्स करके जाते थे, अपनी गन और मशीन गन्स जी जी, वो बाहर रखते थे, बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे ही मैं उनके ऊपर पहुंचा तो उन्होंने मशीन गन से फायर शुरू कर दिया। मेरे कुछ कॉकपिट में लगी, कुछ वाटर फ्यूल टैंक में लगी और कुछ दूसरी, टोटल अब 32 के करीब गोलियां लगी।
अच्छा, खुशकिस्मती है कि फ्यूल टैंक को भी आग न लगी और मुझे भी कोई गोली न लगी। उसकी वजह से जब फ्यूल टैंक खाली हो रहा था तो मैंने सोचा कि अब बेहतर है कि मैं वापस जाऊं सियालकोट। जी जी। अब सियालकोट जब आ रहा था तो रास्ते में सियालकोट के पास ही कोई कंटोनमेंट से 2 किलोमीटर के फासले पर मुझे 15-16 टैंक नज़र आए। मैंने लैंड किया सियालकोट में, डिव हेडक्वार्टर किया जी जी। और कर्नल स्टाफ वहाँ मेहदी साहब थे और जनरल के एक्टिंग था सरदार इस्माइल जी जी। जो कि ब्रिगेडियर थे उस वक्त, लेकिन एक्टिंग GOC थे, वो भी थे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये 16 टैंक जो आ रहे हैं ये आपके हैं जो वापस आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो इंडियन के हैं। तो अब क्या करें? सरदार इस्माइल ने कहा कि उड़ा दो ब्रिज को। तो कर्नल मेहदी ने कहा कि जी ये तो कंटोनमेंट के अंदर है जी जी। और इसको अगर उड़ाया तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसको उड़ाने की बजाय रिकॉललेस राइफल्स भेजते हैं उन पर फायर करने के लिए। तो इतने दौरान मैं भी जो दूसरा एयरक्राफ्ट लेकर दोबारा उसी एरिया में गया जहाँ टैंक देखे थे। अब यानी ब्यूटी ये है उनकी बहादुरी की, अब दाद दें इंडियन को कि जैसे ही पहला गोला उनके टैंक को लगा सारे टैंक रुक गए और वापस चलने लगे। मजाल ये कि उन्होंने कोई फायर किया हो या कुछ किया, हालांकि वो एक नदी के ब्रिज से कोई 800 गज 600 गज के फासले पर कंटोनमेंट मीन के कंटोनमेंट से वो 800 गज के फासले पर थे और वापस चले गए से। हाँ जी। लेकिन एक पहले फायर पर ही उन्होंने रिवर्स शुरू कर दिया, वापस जाना शुरू कर दिया। ये उनकी यानी बहादुरी की इंतहा है जी। अच्छा, उसके बाद फायर जितनी भी लड़ाई होती रही हम ऊपर से देखते थे, सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे। जी जी। और इसीलिए कहते हैं हमें कि एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, कि जो भी हरकत होती हैं हम डिव हेडक्वार्टर और आर्टिलरी हेडक्वार्टर को बता देते थे कि अब यहाँ टैंक 2 जा रहे हैं, यहाँ ये नुकसान हुआ है। हर चीज़ का 13 को मुझे ड्यूटी दी गई उस रूटीन की तरह कि आप एरिया देखें। तो मैं एरिया देखते हुए चुंडा साइड से में था, चुंडा साइड, तो सांबा की तरफ से जफरवाल की तरफ से रिफ्लेक्शन आने लग गया, जैसे कि कोई लेक से, क्योंकि सांबा हमारे मशरक में था जी जी। तो सूरज उस वक्त निकल रहा था तो वो रिफ्लेक्शन आती थी। तो मैंने कहा कि पिछले दिनों यही सांबा में उड़ के आया जी जी, तो यहाँ कोई लेक नहीं, तो ये और बारिश भी नहीं हुई, तो ये सडनली क्या हुआ है कि लेक यहाँ कैसे आ गई। सो मैं देग नदी है जो कि जी जी, तो उसके साथ साथ फ्लाई करता हुआ उसके बल के दरमियान में, ताकि दोनों साइडों से फायर मेरे पर ना आए, और इतना लो कि अगर दुश्मन हथियार उठा के फायर करने भी लगे तो उतने तक मैं उनकी रेंज से निकल जाऊंगा। मैं गया सांबा, सांबा से जहाँ रिफ्लेक्शन आ रही थी वहाँ गया। वहाँ पर मैंने देखा कि 3000 से 4000 गाड़ियाँ ओपन में खड़ी हैं, दरख्त भी थे, जंगल था वो। ये दुश्मन की गाड़ियाँ थी। दुश्मन की। अच्छा, नजर आता था कि वो रात को आए हैं जी जी, और डिप्लॉयमेंट कर लिए, मौका नहीं मिला अभी कैमोफ्लेज करने का, दरख्तों के नीचे जाने का, कुछ भी। तो उन्होंने वहीं पर थे अभी बैठे हुए, और ना वैसे भी नाश्ते का वक़्त था जी जी। तो ये इतला मैंने अपने सीईओ को दी, डिव हेडक्वार्टर को, कोर हेडक्वार्टर को, सारों।
آج کل میرے سی او کور کمانڈر کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ جی آپ ایئر منگائیں اور ادھر بمباری کرائیں، آپ کے کہنے پر وہ دے دیں گے نیچے والے لیول پر۔ تو جنرل رانا نے رنگ کیا کور ایئر ہیڈ کوارٹر میں اور بتایا کہ اسی طرح 3-4 ہزار گاڑیاں ادھر ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، آئیے۔ وہ پہلے تو بلیو نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک فائٹنگ ریکنسنس ایئر کرافٹ 2 جہاز انہوں نے بھیج دی، جا کے دیکھ کے آئے اور ہمیں بتایا۔ جب انہوں نے جہاز نے ایریا دیکھا اور نمبر آف وہیکل دیکھی تو انہوں نے ریکویسٹ پاس کی کہ جی ایئر فورس کے جتنے بھی جہاز اویلیبل تو وہ ادھر بھیج دیں، کیونکہ ٹارگٹ بہت بڑے ہیں، 4 ہزار گاڑی، اب ایک ایک گاڑی کو ایک ایک راکٹ مارتے رہے تو بڑا وقت لگتا۔ اچھا، تو ایئر فورس نے وہاں پر بھیجے، بلکہ انڈین ایئر نے الزام بھی لگایا کہ جی یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نیپال بم پھینک رہی ہے، کیونکہ اتنی گاڑیوں کو نشانہ بنانا بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ C-130 پر نیپال بم لوڈ کرتے تھے، اس ایریا میں جا کے اس کا نوز اپ کرنا تو ٹینک بم جو ہیں وہ رول کر کے گرتے تھے، اور اس نے سارے ایریا کو آگ لگائی، جس کی وجہ سے وہ یونٹس اور ڈویژن جو کہ آیا تھا آرمر کی سپورٹ میں، کیونکہ آرمر بغیر انفینٹری کے نہیں لڑ سکتا، بالکل دن کے وقت وہ لڑتی ہے، رات کو اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے انفینٹری کی تو گارڈ دیں۔ تو انہوں نے یہ بھیجا تھا، اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ 14 ماؤنٹین ڈویژن تھا انڈیا کا، 14 ماؤنٹین ڈویژن۔ اس کے بلکہ 3-4 دن بعد جب کہ ان کے کچھ آدمی پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا، جو کہ ان کے پاس سگنل بھی تھے، کہ ورچولی 14 ڈیو ceased to exist as a formation on 13th of سپٹمبر۔ یعنی اتنا نقصان ہوا کہ وہ ایز اے فارمیشن نہیں لڑ سکتے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ جی اچھا سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ابھی آپ نے ایئر سٹرائکس کی بات کی اور ایئر فورس کی جو پاکستانی ایئر فورس کی خدمات تھیں اس جنگ میں، اور وہ جو 3-4 ہزار وہ وہیکلس وہاں پہ کھڑے تھے ان کو کس طرح تباہ کیا، تو ابھی بات کرتے ہیں ہم اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر۔ سر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انڈیا نے اس طرح حملہ کر دیا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے ایسے کیا اقدامات کیے اس جنگ کو لڑنے کے لیے؟ جنگ کے آثار تو شروع سے بڑے نمایاں تھے۔ جی وہ اس لیے کہ آرمی نے کوئی 6000 کے قریب کمانڈوز اندر بھیجے تھے۔ جی کس سیکٹر میں سر؟ کشمیر میں۔ اور ہندوستان کا وزیر اعظم جو تھا لال بہادر شاستری، وہ یہی بیان دیتا تھا کہ میں اپنی چوائس کا انٹرنیشنل بارڈر پہ کوئی بھی محاذ کھول سکتا ہوں۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ 1961 میں جب ہندوستانی افواج گوا میں انٹر ہوئی ہیں تو اس پہ انہوں نے قبضہ کیا گوا پہ، تو ان کے جو حوصلے تھے وہ بہت بلند ہو گئے تھے۔ 1962 میں نیفا نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی جو تھی، انہوں نے چین کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ 1962 اکتوبر میں جنگ ہوئی، اس میں ہندوستان ہار گیا، لیکن ان کا جو ایم تھا کہ کس طرح اپنے آپ کو اوپر لائے اور پاکستان کو دبائے، تو انہوں نے رن آف کچھ میں آپریشن کیا۔ ان کی افواج آئی، پاکستانی فوج نے اس کا بہت اچھا مقابلہ کیا، ان کو روکا۔ یہ اپریل 1964 کی بات ہے۔
उस ऑपरेशन में रन ऑफ कच्छ में मैंने भी हिस्सा लिया, क्लोज सपोर्ट मिशन किए मैंने। एयरफोर्स में कमिट नहीं हुए थे दोनों तरफ से, लेकिन कुछ ऑपरेशन हमने किए थे। जी जी। तो बाद में मई 65 में फैसला हुआ कि दोनों अफवाज पीछे हट जाएंगी, ठीक है, हिंदुस्तान की और हमारी अफवाज पाकिस्तान के पीछे हट गई। इसके बाद आर्मी ने ये बताते हुए कि हम जंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने 60% फौज रखी और बाकी सब छुट्टी पे भेज दिए। इंडियन आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी जी हाँ। लेकिन कश्मीर में प्रॉब्लम थे, वो सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे अगस्त में हमने नोट किया था कि उन्होंने फोर्सेस हमारी बॉर्डर पे जमा कर दिए। 30 अगस्त ISI का 2 पेजेस का सिग्नल था, टॉप सीक्रेट जो इशू किया गया था। 1 सितंबर को जब जनरल अख्तर मलिक जो छम जोड़िया में उसकी फोर्सेस थी और वो अखनूर पे हमला करने वाला था, हमारी फोर्सेस बिल्कुल ओपन में पड़ी हुई थी। जब हमारा एयर मार्शल नूर खान वहाँ पे गया है, जनरल राणा से मिले, L19 में गया था, तो ये फोर्सेस आपकी ऐसे ओपन में, अगर इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन लिया तो आपका क्या हाल होगा। वो कहने लगे कि जी एयरफोर्स इसमें एक्शन नहीं लेगा, एयरफोर्स कमिट नहीं करेगा। उसी दिन 1 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के जहाज आए जी। अख्तर मलिक ने खुद फ़ोन किया सरगोदा, और वहाँ से 2 जहाज आए, स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी जी जी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस। रफ़ीकी साहब ने 2 जहाज गिरा दिए और 2 जहाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस से गिराए। यहाँ से फिर जंग का आगाज़ होता है। सर, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे, और इनके साथ फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की खिदमात की। और कमांडोर वसीम अहमद तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, फिर उनकी जानिब भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज 6 सितंबर 1965 की जंग के सिलसिले में हमारी एक सेलिब्रेशन चल रही है, और उस फतह को मनाने के लिए जो आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है उसमें आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कमांडोर वसीम अहमद को। सर, काफ़ी देर से आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की बहादुरी के किस्से सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, नेवी ने क्या किया? आपको कैसे पता चला कि इंडियन फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान में घुस आई हैं और वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है? पाकिस्तान एयरफोर्स और जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं वो इंगेज हो गई हैं। आपने क्या किया? पाकिस्तान नेवी के जहाज़ उनको 6 सितंबर को ही पता चला कि जंग शुरू हो गई है, तो फौरी तौर पर तमाम जहाज़, और उस वक़्त हमारे पास टोटल 7 जहाज़ थे, 7 के सातों बाहर निकल गए। शुरू में इनको कराची के गिर्द 100 मील के फासले पर एक दायरा बनाकर कराची की हिफाजत करना था कि इंडियन नेवी के कोई जहाज़ उधर हमला न कर सके। लेकिन रेडार की इंफॉर्मेशन के मुताबिक और दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पता ये चला कि इंडियन नेवी सारी की सारी मैदान से गायब है। वो सिरे से मैदान में उतरे ही नहीं। इंडियन नेवी और ये पाकिस्तान के साथ जंग कर रही थी, कर रहे थे। गालिबन कम से कम मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडियन बनिया चूँकि हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखता है, उन्हें जंग के किसी जज्बाती पहलू से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि समंदर पर जंग करने का कोई नफ़ा या नुकसान तो है कोई नहीं, तो इसलिए वो मैदान में निकले ही नहीं। तो एक दिन सुबह 4 बजे
4 बजे की वॉच थी, मैं ड्यूटी पर था। उस वक़्त कैप्टन ने फैसला किया कि यहाँ पर हम सरफेस कर जाते हैं, कोई आसपास कोई फिशिंग बोट, कोई और इनका जासूस जहाज़ इत्तला देगा कि यहाँ सबमरीन घूम रही है, तो हम सरफेस कर गए। अब जब हम सरफेस कर गए तो मुझे सामने खड़ा हुआ इंडियन नेवी का जहाज़ नज़र आया, गोदावरी, बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था वो। थोड़ी सी धुंध थी इसलिए पेरिस्कोप से नज़र नहीं आ रहा था क्लियरली। तो जब हम ऊपर पहुँचे तो गोदावरी वालों ने भी शायद देख लिया होगा। क्या क्या जज्बात है उस वक्त दुश्मन को बिल्कुल सामने खुले समंदर में? वो बिल्कुल पीस टाइम माहौल में वो लोग खड़े हुए थे। जब उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी होगी तो उसने जल्दी से इत्तला दी। हमने अंदाज़ा लगाया कि ये 3-4 घंटे में बाहर निकलेंगे। तो लो एंड बिहोल्ड 3 घंटे के बाद वो बाहर निकल आए और फिर हमारे कप्तान को चांस मिल गया ब्रह्मपुत्रा पर हमला करने का। इसी तरह 71 में हुआ था और इसी तरह 65 में कि ये जहाज़ बॉम्बे से निकलते थे और साहिल के साथ साथ चिपके हुए वेस्ट को जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। तो एज़ यूजुअल सुबह के वक्त सबमरीन ने उनको जाते हुए देखा। सबमरीन की रफ्तार चूँकि बहुत कम होती है इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं सकते थे। करीब जाकर उनके रास्ते में बैठ गए कि शाम को लौट कर आएंगे तो रास्ते में इन्हें शिकार करेंगे। ऐसे ही हुआ। वो शाम को जब लौट कर आए, 2 जहाज़ थे, ब्रह्मपुत्रा और ब्यास। ब्रह्मपुत्रा और ब्यास दोनों एंटी एयरक्राफ्ट फ्रिगेट थे, यानी सबमरीन मारने के लिए वो वैसे भी इक्विप्ड नहीं थे। लेकिन हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन है, चाहे वो एंटी सबमरीन हो या एंटी एयरक्राफ्ट हो। तो हमने शिकार किया। 4 टॉर्पीडोज़ का सैल्वो मारा गया फैन की शक्ल में, ऐसे ऐसे करके। जनरल साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। आप चूँकि सियालकोट और फिर चविंडा का वो जो महाज था, पूरी दुनिया में बड़ी मिसाल दी जाती है। जो चविंडा में जो बम बांध के तो इंडियन टैंकों के नीचे लेट गए थे लोग, और पूरी कौम जो है उनकी बहादुरी का इतराफ़ करती है। और ये क्या जज्बा था कि लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, और जो आपके सिपाही थे किस तरह आपने उनको तैयार किया और क्यों किया? कि आपके पास एमुनिशन कम था, असला कम था, क्या आपके पास मैन पावर कम थी? ये क्या चीज़ थी ये जो चविंडा वाली थी? चविंडा में इंडियन फोर्सेस ने 284 टैंक लाए। 284 उनके मुकाबले में जो गई हमारी फोर्स 25 कैवरी, उसके पास 44 टैंक थे। सिर्फ 44? 284 के मुकाबले में 44। और उसको भी हमने पुश करके वापस भेजा। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये अगर जज्बा ना होता तो ये नामुमकिन बात है। 284 और 44 तो बहुत फ़र्क है। यही है कि ये हर जगह पर इस लड़ाई में ये जज्बा मौजूद था, खाए वो इन्फेंट्री है या आर्मर है या एयरफोर्स। एग्जैक्टली। तो एयरफोर्स ने भी कमाल किए, आर्मी ने भी डट के मुकाबला किया, नेवी ने भी। तो कैसे तैयार किया अपने लोगों को? कैसे पता चला आपको कि ये जो 284 जो टैंक्स आ रहे हैं तो हमारे पास 44 हैं, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे? फैसला किसका था कि इतने बड़े पैमाने पे जो आ रही है फोर्स आपके अगेंस्ट अटैक कर रही है, तो किस तरह हम लोगों को, और ये कौन लोग थे ऐसे जांबाज? शुरू में तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी होल डिवीजन आर्मर डिव पूरी थी, डिव पूरी है। उनका ख्याल था कि मुमकिन है 1 रेजिमेंट या 2, लेकिन बाद में जब पकड़े गए टैंक और टैंकों से पता चला कि ये तो उनकी पूरी डिवीजन इधर आई हुई है। जी जी। तो ये अल्लाह ताला की मदद थी जिसकी वजह से उनको ये मार खानी पड़ी इस सेक्टर में, वरना कोई वजह नहीं कि वो सीधा जीटी रोड तक न पहुंच जाते कि जफरवाल, फ्लोरा, चविंडा और आगे।
تو یہ ایک جذبے کے تحت تھا. کیسے تیار کیا آپ نے کیسے لوگوں تیار کو؟ کیا؟ جذبہ ہوتا ہے، میں اپنا ذاتی ایک بتاتا ہوں کہ پہلے دن 6 سپٹمبر 7 کو میں اڑ رہا تھا تو انڈین کے 2 جہاز اوپر سے گزرے میرے اور 2 نیچے سے. میں نے ایئر کرافٹ کو نوز ڈاؤن کیا. جی وہ خود انلکیلی وہ اتنا نوز ڈاؤن ہوا کہ دوبارہ میں اس کو واپس لانے کی کوشش کروں تو وہ رڈار اور وہ انفیکٹو ہو گئے، سیدھا ہی وہ زمین کی طرف. پہلی دفعہ زندگی میں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑائی کا پہلا دن ہے اور میں ابھی تو لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا. ہاں، اور اس کے نوزل ڈاؤن ہو گئے ہیں. ان کا جائے اور ایک پائلٹ بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس موقع پر بچا دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اور جیسے ہی زمین کے نزدیک آیا تو وہ ایئر کرافٹ کے ساتھ جو ہوا ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے جہاز نے آہستہ سے نوز اپ کر لی. اچھا، لکیلی ادھر کوئی وائر نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھے اور میں آرام سے ہائٹ گین کر گیا. تو یہ جذبے کے تحت تھا کہ ابھی تو ہم لڑائی نہیں لڑے اور مر جائیں تو یہ تو کوئی شہادت نہیں. یہ کوئی شہادت کوئی نہیں. شہادت. یہاں پہ ہم شامل کر لیتے ہیں پانیوں والوں کو بھی. ایک تو سمندر، پھر پانی کے اندر کھلا سمندر ویسے ہی بڑا دشمن ہوتا ہے انسان کا. تو آپ لوگوں کی جو لائف ہے مطلب سی سکنس ہو جاتی ہے اور بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان ہیں آپ لوگ، مشینیں تو نہیں ہیں سب میرین کی طرح. تو کیسے اپنے آپ کو بھی آپ فٹ رکھتے ہیں، اپنی مشین کو بھی فٹ رکھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے؟ جہاں تک جذبے کا تعلق ہے، یقیناً یہی ایک کموڈٹی ہے جس میں ہم انڈین آرم فورسز کے اوپر واضح برتری رکھتے ہیں. کم از کم نیوی کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا تناسب فورس کا 1 اور 3 کا ہے. اچھا سر، ابھی چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے تو ابھی آج کی طرف آتے ہیں، ہم اپنے پریزنٹ کی طرف آتے ہیں. تو جنرل صاحب، جو جذبہ 1965 میں پاکستان فورسز نے دکھایا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فورسز میں آج بھی وہی جذبہ ہے، وہی کیپیبلٹیز ہیں اور وہی ایک ان کے اندر تحریک ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع اسی جوش و جذبے کے ساتھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اس وقت 65 میں دکھایا تھا؟ یہ آئی وڈ سے کہ جب بھی آپ کو ایک اچھا لیڈر ملے جس پر آپ اعتماد کرتے ہو تو وہ جذبہ پھر بھی پیدا ہو جائے گا. اب ہمارے آرمی چیف نے ٹرائبل ایریا میں نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی میں جو کر رہے ہیں وہاں پر سولجر جانے دے رہے ہیں، آفیسر کئی انہیں قربانیاں دی ہیں تو وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ چند دن کی بات ہے اور آپ واپس اسی جذبے میں آ جاتے ہیں جس جذبے کے ساتھ آپ 65 میں گئے تھے. تو اس لحاظ سے میں یقیناً ہم اس جذبے پر، جہاں تک انٹیلیجنس کا تعلق ہے، وہ تقریباً ساری دنیا مانتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ISI دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس. یہ بھی دشمن ہی کا پروپیگنڈا ہے کہ انٹیلیجنس میں ہماری کوئی کمزوری ہے. تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جذبہ بھی ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ غنی اکبر نے کہا کہ شہید ہو جائیں آپ کو جنت ہے، سارا ہے، اور اگر زندہ واپس آ جائیں تو آپ غازی ہیں، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس جذبے کے تحت آدمی پھر سے وہی اسپرٹ، وہی جذبہ لے کر میدان جنگ میں اترے گا. وہی جذبہ میرے لیے آج بھی وہی کیفیت ہے کہ اگر بلایا جائے، قوم بلائے تو میں اسی جذبے سے جاؤں گا جس سے
65 में माशाअल्लाह। किया था। तो ये जो है जज्बा, इसी वजह से हमारी एयर फोर्स में आते हैं लोग, काम नेवी भी में कर आते रहे हैं, आर्म हैं, फोर्सेस जाने में भी कुर्बान कर रहे हैं, और ये जज्बा रहेगा इंशाल्लाह, ये जज्बा रहेगा। नाजरीन, हम लोगों ने कोशिश की है कि अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में ना सिर्फ 65 वॉर के वो जो यादाश्तें हमारे लेजेंड्स के जहनों में मौजूद हैं उनको ताज़ा करें, बल्कि हमारी ये कोशिश भी है कि उन एक्सपीरियंसेस को हम आने वाली जनरेशन जो है या जो अभी मौजूदा हमारी नौजवान जनरेशन है उन तक ट्रांसफ़र कर सकें। हम लोग रोज़ टीवी की जानिब से 6 सितंबर 1965 की जंग के हीरोज़ लेजेंड्स को सलाम पेश करते हैं, और इसके अलावा अपनी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को भी सल्यूट पेश करते हैं। रूच रसा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।